Hello everyone, today we are here to solve or learn about the next topic related to complex numbers, which is square root of complex numbers. You are aware of how to find the square root of real numbers using long division method, or if possible by prime factorization you used to find it. But how to find the complex numbers? They are little bit different, imaginary parts are also there in it. So we are directly starting it with some examples. Let us go for it. I am having the first question as find the square root of the first question is 5 plus 12i. If I am having the question as 5 plus 12i, how to find its square root? Let's learn about it. We are aware of the different properties of a complex numbers. So if we will be solving a complex number, this square root will also be a complex number. Let us see which value we are getting for it. I am taking x plus iy is equal to 5 plus 12i whole square root. I have taken a complex number which is equal to the square root of this given number. Now if we will be able to find the value of x and y, we will get our answer. So how to find it? First of all, we will apply this root we have to remove, so we will be squaring both the sides. What shall we get on a squaring? Just see, we are getting x plus iy the whole square is equal to 5 plus 12i, isn't it? Root will be removed. Now expand it, expand and collect the real part. पहले simple expansion करते हैं. Let's see which one is the real part and what is imaginary. On expansion we are getting x square plus y square, that is iy the whole square plus 2x into y. Y matlab in place of y we are getting iy is equal to 5 plus 12i, isn't it? Let's go for it. I am getting I square, y square. So I square is minus 1, you are aware of. And the real part is x square minus y square plus 2xy is the imaginary part because it is with I. And it is equal to 5 plus 12i, isn't it? On comparing, we are getting two equations here. The first one is x square minus y square is equal to, here the real part is 5. I am getting the value as 5. This is equation 1. And the another equation is 2xy is equal to 12 equation. We will be finding the value of x square plus y square the whole square. यहाँ हमें मदद करेगा एक फॉर्मूला, that is a plus b the whole square. अगर आप इसे expand करें तो क्या मिलता है आपको? You are getting a square plus b square plus 2ab. अब अगर आपको इसको convert करना है, a minus this part आपको चाहिए a minus b the whole square. अगर आपको चाहिए तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? You will be writing a square plus b square minus 2ab. And since you are subtracting a 2ab, you will be adding also. और ऐड करने से ये जो बचा हुआ 2ab है, both will become 4ab. So at last you have got a plus a minus b the whole square plus 4ab. This concept I'll be applying here. अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से आपको क्या मिल रहा है देखिए जरा. एक्स स्क्वायर, यहाँ इन प्लेस ऑफ ए आई एम टेकिंग, इफ आई हैव टेकन ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ऑन पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला व्हाट शैल वी गेट? हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 4ab इज देयर, इजंट इट? तो 4
x square y square. We can adjust it like x square minus y square the whole square plus 2xy the whole square, isn't it? So in the value, on putting the values from equation 1 and 2, what shall we get? We are getting this as 5 square plus 2xy is 12 and its square. On solving, we are getting it as 169, and you are aware of that it is square of 13. Okay, so in this manner you have got x square plus y square the whole square is equal to 13 square. Let's compare. On comparing, generally जब आपको एक वैल्यू दी जाती है x square is equal to 4, अगर आपको कोई वैल्यू दी है, एक रियल नंबर है आपके पास x, तो उसका स्क्वायर रूट क्या आता है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, व्हाट यू यूज टू गेट, आपको मिलता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. अप्लाइंग द फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यू यूज टू गेट दिस वैल्यू. ये आपको मालूम है. बट हियर सी चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको प्लस माइनस 4 मिलेगा क्या? Here x and y, wherever we are writing x plus iy, we are aware of x and y are real numbers. So since here we have taken the square of the real numbers, isn't it? So क्या मिलेगा? It will always be the positive quantity. I am getting the answer as x square plus y square is equal to 13. This will be my equation 3. Now we will solve equation 1 and 3 to get our answer. So equation 1 is what? Equation 1 हमारे पास है x square minus y square is equal to 5. This is equation 1. Let's add them. On adding, what shall we get? We are getting 2x square is equal to 18 and x square equal to 9. Now this time x square का हम square root निकाल रहे हैं. We are getting x, and as per the condition we will be getting the value of x as plus minus 3. तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ जब आप square root निकालते हैं in this term, you have to write only the positive value, whereas in this term you will be taking plus minus 3. Okay, plus minus sign will be taken here. अब इस x स्क्वायर का वैल्यू अगर हमने इक्वेशन 3 में पुट किया, फ्रॉम 3 व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? देखिए पुट करके हमको क्या मिलता है. दिस इज 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13. वाई स्क्वायर इज 4 एंड y इज प्लस माइनस 2, isn't it? Now we have to write the value of, किस वैल्यू को हमें निकालना है यहाँ पे? x plus iy. Since both are containing positive plus minus sign, we can take out plus minus sign common, and in the bracket what shall we left with? अब हमारे पास x की वैल्यू में प्लस माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो एक वैल्यू 3 आ रही है, एंड y में भी प्लस माइनस के साथ हमारे पास 2 है. पर अब हम वैल्यू कैसे रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस रॉन्ग भी हो जाते हैं. एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं इज़ व्हाट, अभी आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखिए ज़रा. इस समय इस वैल्यू को लिखते समय इस 2xy का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हियर 2 इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वी आर अवेयर ऑफ x and y are two real numbers, and I am getting their product as positive, isn't it? दो नंबर्स, दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, मतलब दोनों का साइन सेम होता है. ओके, सो सिंस हियर वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट एज पॉजिटिव, तो मुझे x एंड y की सेम वैल्यू लेनी होगी. आई हैव टू टेक द सेम वैल्यू ऑफ x एंड y. इफ आई एम राइटिंग x प्लस iy, अगर मैंने x को 3 लिया, आई हैव टू टेक y एज पॉजिटिव 2, isn't it? And if I have taken x as minus 3, I have to take the value of y also negative, which is I into 2, minus 2 will be there. अब अगर मुझे इसको कॉमन आंसर लिखना है मुझे, तो what shall I do? What will I do? I'll take out minus sign common. I am left with 3 plus
I into 2, and in this manner x plus I y I am getting as, दोनों साइन हमें कंसिडर करने हैं, तो I'll be getting the answer as plus minus 3 plus I into 2, isn't it? So while writing the value, just remind that you have to check this value of product of two real numbers. अगर आपने यहाँ रॉन्ग कर दिया तो आगे आपका इसका एप्लीकेशन है, रूट स्क्वायर रूट का यूज़ करना है आपको, तो वो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है. ओके, सो वन मोर क्वेश्चन वी आर ट्राइंग ऑफ द सेम पैटर्न. लेट्स सी व्हाट इज दैट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 minus 24i. Now 7 minus 24i we have to find. तो यहाँ क्या फर्क दिख रहा है आपको, आगे आपको समझ में आ जाएगा. Again we will be taking the value of x plus iy as 7 minus 2i the whole 7 minus 24i the whole root. Okay, squaring both the sides, same procedure we have to follow. Squaring both the sides, what shall we get? We are getting x square minus y square जब आप उसको expand करेंगे, plus 2xyi is equal to 7 minus 24i. ठीक है. On comparing, we are getting x square minus y square is equal to 7, that is equation 1, and 2xy, this time see children, it is negative 24 minus 24. So जब हम आंसर लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तब हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है. ओके, फिर अब हमने निकालना है द नेक्स्ट पॉइंट. अभी आपको याद करिए, ज़रा रिकॉल करिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया. व्हाट वाज इट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर वी विल बी फाइंडिंग. इसकी वैल्यू क्या आ रही है ज़रा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2xy द होल स्क्वायर. द फॉर्मूला सेम पैटर्न. सॉल्व करने से हमें मिल रहा है 7 स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, एंड द आंसर इज 676. देखिए आता है कि नहीं इतना, सॉरी, एंड द आंसर इज 625. 625 is what? Is the square of 25. So the answer is 25 the square, and in that manner x square plus y square I am getting as 25, equation 3. On solving the value or the equations, we are getting the values of x and y as, देखिए ज़रा, I am having x square plus y square is equal to 25. X square minus y square is 7. On adding, what shall we get? We are getting 2x square is equal to 32, or x square as 16 and x is equal to plus minus 4. From equation 1, we are getting 16 plus y square. From equation 3, we are getting 16 plus y square is equal to 25, or y square is 9 and y is equal to plus minus 3. So now the time is to write the value of x and y, how to take the square root of the given number. So the square root of given number sin minus 7 minus 24i is, we have taken it as x plus iy. On putting the value again, we have to check the sign here. So 2xy we are getting as minus 24, the negative sign it is taking, holding. तो क्या मिलेगी वैल्यू आपको? Negative sign means they will be having x and y are having the opposite signs. अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, and y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा. उसी तरह से दो वैल्यूज निकाल के अगर हमने साइन कॉमन निकाला तो what shall we get? We are getting plus minus, x की जगह हमने पुट करनी है वैल्यू 4, एंड दोनों का ऑपोजिट साइन होना चाहिए, इनटू
I into 3. So this is how we can get the square root of complex numbers. Now our next topic is quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चिल्ड्रन रिमाइंड दिस, आपने जो पढ़ा है आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c. 10th में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने 3 मेथड्स पढ़े थे. यू हैव लर्नड अबाउट द 3 मेथड्स. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, सेकेंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड द थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड. जब हमसे फैक्टराइज नहीं हो पा रहा तो वी विल गो फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और अगर वो भी हमें लग रहा है कि हमें दूसरा मेथड यूज़ करना चाहिए तो वी कैन यूज़ फॉर द बिगर वैल्यूज़ इट इज़ बेटर टू यूज़ द फॉर्मूला मेथड. ओके, so how to solve the questions, how to use the methods, let's go for it. Again, using the example, we will be solving the quadratic equations. Okay, let us go for the first equation. बस रिमाइंड दिस थिंग कि इस समय हम 10th की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं पढ़ रहे. जो हमें मिली उसका एक पार्ट जो हम 10th में नहीं सॉल्व कर पाए थे, दे आर विच वर हैविंग b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट एज नेगेटिव, जो नॉन रियल ज़ीरो रूट्स थे जिसके लिए हमारे पास. तो उन वैल्यूज़ को लेके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, एंड वी विल बी गेटिंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सो कैसे, लेट्स सी दिस थिंग. The first question is x² plus 5 is equal to, I'll write plus 5 as minus into minus 1 into 5. So I'll be getting plus 5 again. This will be solved as x² minus, I am getting minus 1 as I² into 5 है, 5 को हम √5 the square लिख सकते हैं. Next step is x² minus I into √5 the whole square is equal to 0. Okay, और अब इसे सॉल्व किया जाए. अब आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b² फॉर्म में है ये. तो हमारे पास क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं? वी विल बी गेटिंग x माइनस आई √5 a माइनस b इंटू a प्लस बी x प्लस आई √5 इज इक्वल टू 0. एंड जिस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते थे वही काम हमने यहाँ किया. तो वैल्यूज़ कैसे मिलती हैं आपको? आइदर द फर्स्ट ब्रैकेट विल बी 0 और सेकंड. तो x की हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिल गई? I √5 एंड माइनस I √5. दीज आर टू वैल्यूज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन वी आर नॉट गेटिंग द रियल सॉल्यूशन. Okay, so here the values of x are imaginary, they are containing I in them. ठीक है, so go for the next. The next question that we are solving is x² plus x plus 1 is equal to 0. This we will solve using the completing the square method. Okay, तो हमें solve करने के लिए कैसे solve करना है इसे देखिए ज़रा. I am having a². We will be using this formula x² plus 2ab plus b², or we can use minus as per the demand of the question. So I am having x², a² मेरे पास है, okay, plus 2ab मुझे चाहिए. So 2 into x into 2ab. अब यहाँ पे मेरे पास टर्म कौन सा है? x. okay, x है तो मुझे यहाँ पे x बचा हुआ चाहिए ना. तो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दैट आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द टर्म एज x अगेन. जो टर्म दिया है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते आप. तो यू आर राइटिंग इट एज हाफ, एंड सिंस दिस इज b इज a² plus 2ab plus b², वी आर हैविंग द फॉर्मूला. तो b यहाँ पे हाफ दिख रहा है, तो वी शुड गेट b² also for completing the square. तो we will be getting 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4. अब ये हमने अपनी मर्जी से लाया तो we have to subtract it so that the question will remain same. We will be getting 1/4 plus 1 is equal to 0. The answer we are getting as x plus
हाफ द होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में आ गया। एंड ऑन सॉल्विंग इट व्हाट शेल वी गेट, हमें इसे फिर से आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एक्सपेंशन नहीं होता, हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। सो आई विल बी गेटिंग एक्स प्लस हाफ द होल स्क्वायर माइनस अगेन आई स्क्वायर इंटू 3/4 इज इक्वल टू 0। The next step will be x plus 1/2 the whole square minus I into root 3/2 the whole square is equal to 0। 3/4 का स्क्वायर कर दिया हमने, किसका स्क्वायर है 3/4 हमने देख लिया, रूट 3/2। ओके, सो यहाँ पे फिर से हमने यही जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है, आई एम गेटिंग x प्लस हाफ माइनस रूट 3/2 I and a plus b into a minus b we used to get, तो x plus half plus root 3/2 into I is equal to 0 and the values are x is equal to minus half plus root 3/2 I and minus half minus root 3/2 into I. It can be written collectively as since minus half is same in both the terms, I'll be writing minus half. यहाँ दो अलग अलग साइन आपके आ रहे हैं तो we will be taking both the signs together. They are plus minus root 3/2 I. This is our answer. ठीक है, एक और क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करते हैं इसी तरह से। We are having the next question as 4x square minus 12x plus 25 is equal to 0। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करें, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें x वाला टर्म दिख रहा है। अब इसका एक थोड़ा शॉर्ट, हमें x स्क्वायर को में से 4 हटाना है तो वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड्स। डिवाइड करने से हमें क्या मिला, we will be getting x square minus 3x plus 25/4 is equal to 0। मिल गया। अब पूरा ये फॉर्मेट यूज़ करने के एक फॉर्मूला पैटर्न आएगा एक्चुअली उसी से, पर थोड़ा सा शॉर्टकट है, आप थोड़ा सा लर्न करिएगा, इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टर्म। अब आपने कैसे इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, जस्ट सी दिस थिंग। आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसका x लीजिए, देन यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस साइन। ये साइन देखिए आप, यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, यू विल बी अप्लाइंग हियर एंड द कांस्टेंट विच इज देयर विद x क्या है, 3 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो आई एम गेटिंग 3/2 द होल स्क्वायर लिख दीजिए इसका, और जिस भी नंबर से आपने इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है आपको, नो मैटर व्हाट इज हियर, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मिल जाएगा आपको, -9/4। ठीक है, और बचा हुआ नंबर आप ऐसे ही लिख देंगे 25/4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपकी डायरेक्ट एक स्टेप आ गई इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। अभी कैसे आया, जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आप देखिए क्या मिलता है आपको। ये आपके नॉलेज के लिए, पर इस स्टेप को हम यूज़ नहीं करेंगे, ये आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे किया, फिर से सुनिए आप। एक्स स्क्वायर का x लिखा, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने कांस्टेंट निकाल दिया बाहर, एंड वी आर हैविंग ओनली एक्स स्क्वायर, तो उसका x लिखा हमने। देन द साइन विच द टर्म विच इज हैविंग x इन इट इज होल्डिंग, वो साइन हमने यहाँ लगाया, और जो भी कांस्टेंट है उसके साथ में उसे 2 से डिवाइड करके वो वैल्यू यहाँ लिखी, होल स्क्वायर किया, एंड जो भी इस टर्म का स्क्वायर है उसे सब्ट्रैक्ट किया। नो मैटर नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है ना, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो सब चलेगा, उनका स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया, एंड फिर रिमेनिंग आंसर। अब इसको अगर दिस इज़ फॉर योर सेक, हम इसको आगे सॉल्यूशन में यूज़ नहीं करेंगे, ये स्टेप हमने बस आपको बताने के लिए लिखनी है। चेक कर रहे हैं आप कैसे आंसर आया ये। लेट अस एक्सपैंड दिस थिंग, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर
माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, हमको 3x मिल रहा है ना यहाँ पे, आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और जब इसको एक्सपैंड किया प्लस 3/2 द स्क्वायर यू आर गेटिंग विच इज़ 9/4, ऑलरेडी एक 9/4 है क्वेश्चन में यहाँ पे आपका, एंड प्लस 25/4 है इज इक्वल टू 0 तो है ही, प्लस 25/4, इस तरह से ये दो टर्म्स जब आपके कैंसिल हो जाते हैं यू आर गेटिंग दिस टर्म। एक्चुअली ये एक्सपेंशन ही है बट इन शॉर्ट फॉर्म, एक स्टेप हमारी कम हो जाती है अगर हमने इस तरह से सॉल्व किया तो। ओके, वी कैन डायरेक्टली राइट दिस वैल्यू। नाउ लेट्स गो फॉर द स्टेप, दिस इज फॉर जस्ट योर नॉलेज, यू कैन राइट इफ यू वांट इन ब्रैकेट, बट आफ्टर दिस स्टेप वी विल बी राइटिंग द नेक्स्ट स्टेप एज x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर। देन अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, आपको क्या मिलता है देखिए ज़रा, प्लस 16/4 मिला आपको विच इज़ व्हाट 4। ओके, अब इसको सॉल्व करते समय एक बात ज़रूर ध्यान रखिए बेटा, इसमें एक गलती होती है कि आप लोग इसमें लिख देते हैं -16, ये साइन की तरफ, अभी आप ऐसे कैसे लिखते हैं इसको, माइनस साइन तो यहाँ है पर आप उसे कॉमन नहीं निकालते, आप 9 + 25 करके अपॉन 4 इस तरह से लिख देते हैं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यू कैन डू वन थिंग कि यू कैन राइट द पॉजिटिव टर्म फर्स्ट, 25/4 पहले लिख लीजिए इन रफ वर्क इफ यू वांट टू डू दिस थिंग, एंड फिर आप लिखिए 9/4। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना, नेगेटिव टर्म आप बाद में लिखिए तो जिससे आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, आपका गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इज व्हाट, वन इज नेगेटिव अनदर इज पॉजिटिव, तो बोथ विल बी सब्ट्रैक्टेड, पर जनरली हड़बड़ी में या कुछ भी कहिए ये साइन आपका छूट जाता है और आप इसे इस तरह से ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं। सो डोंट डू दैट मिस्टेक बिकॉज यू विल लूज बड़ा सा नंबर आप उसमें खो देंगे आंसर में। सो इन दिस मैनर वी हैव गॉट अगेन दिस x² + a² में क्या दिख रहा है आप देखिए ज़रा, x माइनस 3/2 द होल स्क्वायर, I can write it as plus 4 = 0, जहाँ मुझे I इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। I'll be getting the answer as x minus 3/2 the whole square minus 2i the whole square equal to 0, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किया हुआ है। अब आगे इसे आप सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द आंसर। आंसर क्या होगा बताइए ज़रा आप मुझे। अब आप आगे प्रीवियस मेथड से जब इसे सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग द आंसर एज, क्या मिलेगा आपको, दिस इज x plus 3/2, x is equal to 3/2 plus 2i and x is equal to 3/2 minus 2i। दिस चेक कर लीजिए ज़रा, a + b into a minus b फॉर्म में लेके आइए and also you can write the answer collectively. Next question we are solving is by using formula method. The equation is तो आपको मालूम है कि जब आपके पास ax² + bx + 6c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो फॉर्मूला मेथड का यूज़ करके आपको क्या मिलता है, x is equal to -b ± √b² minus 4ac upon 2a। ये आपको याद ही होगा लास्ट ईयर का वर्क। अब इसी मेथड को हमें यूज़ करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर सॉल्विंग is given equation 8x² minus 9x plus 3 is equal to 0. Here we will be finding the value of ABC. Here a is equal to 8. What about b? b is -9, ध्यान दीजिएगा साइन का, and c is equal to 3. लेट्स गो फॉर, पहले सॉल्व करने से पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ b² minus 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b² minus 4ac? सॉल्व करें, इट इज़ 81, 9² आएगा आपके पास में, -9², 81 minus 4ac इज 4 × 8 × 3, कितना मिल रहा है
81 माइनस, बोलिए, इज इट 96? ठीक है. On subtracting we are getting a negative quantity which is 15. ठीक है, -15 we are getting. अब यहाँ नेगेटिव आ गया तो लास्ट ईयर की बात होती तो आप कहते नो रियल रूट्स और सॉल्व नहीं करते. बट सिंस वी हैव लर्न अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स वी हैव टू सॉल्व इट. कैसे करेंगे? अगेन दिस विल बी रिटन एज, इसको पहले आयोटा के फॉर्म में ला के बेस होल स्क्वायर कर लेते हैं. We will be getting the value in place of -1 we are writing, we can write it as -1 into 15, and in place of -1 we will be writing I square. So this has become I square into 15, and in next step we can write root 15 I the whole square. Okay. अब इसे हम यूज करेंगे फॉर्मूला में. सो सॉल्यूशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है ना हमें. x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. पुट करिए वैल्यू, क्या मिलेगा? माइनस b इज देयर, b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है -9, तो आई विल बी गेटिंग प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, दैट इज रूट ओवर रूट 15i द होल स्क्वायर. अब प्लस माइनस साइन ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, तो we will be writing direct value into 2 into 8. It is 9 plus minus root 15i upon 16. अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है. So the value of x is 9 by 16 plus minus root 15 by 16i. See, this is your next question. यहाँ पे एक सिंपल सिंगल टर्म नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये. तो कैसे सॉल्व करें इसे? तो अगेन विल बी यूजिंग द सेम पैटर्न, बट आप कैलकुलेशन के समय बहुत ध्यान रखिएगा, एनीथिंग शुडंट बी रॉन्ग. हियर वी आर हैविंग a इज इक्वल टू 1, b इज -5 minus i and c is equal to 18 plus i. Remind this children, अगर यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है तो आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूला में यूज करेंगे तो अपने आप माइनस साइन का एडजस्टमेंट हो जाता है. सो डोंट ओपन द ब्रैकेट, कीप दिस माइनस साइन लाइक दैट. वी विल बी फाइंडिंग नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज b स्क्वायर माइनस 4ac? b स्क्वायर देखिए, माइनस का स्क्वायर, नेगेटिव साइन उसका स्क्वायर इज ऑलवेज द पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड हमारे पास क्या मिल जाएगा? 5 minus i द होल स्क्वायर -4 into 1 into 18 plus i. इस टाइप का क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में, 5 मार्क्स में मिल सकता है, बिगर मार्क्स क्वेश्चन है. और अगर यहीं पे आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो उसके बाद आपके मार्क्स पूरे थे. यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क आफ्टर दिस स्टेप इफ इट इज रॉन्ग. सो व्हाइल सॉल्विंग दिस स्टेप टेक केयर ऑफ साइन, बहुत ध्यान से करिए. इट इज, अब हमें एक्सपैंड करना है इसको, तो क्या मिलेगा हमें? a स्क्वायर दैट इज 25 प्लस b स्क्वायर दैट इज i स्क्वायर, माइनस का साइन है तो 2ab. ओके, ध्यान से इसमें आप टाइम लीजिए, क्योंकि आगे अगर ये रॉन्ग हो गया तो आपका पूरा सोल्यूशन रॉन्ग है. देन द नेक्स्ट स्टेप इज माइनस. अब मैंने 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया तो 72i आई एम गेटिंग. एंड देखिए यहाँ भी एक रॉन्ग होता है, जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले में तो आप माइनस साइन लिखते हैं, बट बाद में फिर माइनस की जगह प्लस ही लिख देते हैं, तो उससे रॉन्ग हो जाता है. सो टेक केयर ऑफ दिस. दिस इज -4i. ऑन सॉल्विंग आई एम गेटिंग 25 minus 1, i स्क्वायर इज -1, -10i minus 72i. सॉरी, दिस देखो मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया. दिस इज -72 नॉट i ना, 18 के साथ i नहीं है. So I am getting -72 minus 4i. अब रियल टर्म्स एंड इमेजिनरी टर्म्स आप कैसे कलेक्ट करते हैं साथ में? दिस इज 24 minus 72. We will be getting the answer as -48. ओके, ठीक है. एंड दिस इज -14i. तो हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई -48 minus 14i.
अब क्या करना है आपने इसको, आज तो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर रूट हटा दें, तो अब हमें हमको इसको फॉर्मूला में यूज़ करना है। फॉर्मूला में यूज़ करना है तो फिर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज, देखिए अब यहाँ पे माइनस बी है, ऑलरेडी माइनस साइन इज देयर, तो वी हैव टू राइट 5 माइनस आई। तो इस तरह से साइन ब्रैकेट ओपन नहीं करे तो भी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आपके पास माइनस 48 माइनस 14i है चिल्ड्रन। तो आप इसको तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आपने लर्न किया ना एक टॉपिक, अब यहाँ पे यूज होगा आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट यू हैव लर्नड अर्लियर। दिस इज 2 into a is 1, तो वी विल राइट इट एज 2, दिस वी विल टेक एज इक्वेशन 1, अदर देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वैल्यू वी आर टेकिंग एज 1। अब यहाँ तो इसे सॉल्व करना कब पॉसिबल होगा, जब हम इस टर्म का स्क्वायर रूट निकालें। सो द प्रीवियस मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ये पूरा मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे करेंगे, सो लेट अस टेक, जैसे हमने पिछली बार एज्यूम किया था, इस बार हमने x यूज़ कर लिया, ABC यूज़ कर लिए, तो आई एम टेकिंग p प्लस आई क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस 48 माइनस 14i। ओके, सो again squaring both the sides, the previous were what shall we get, we will be getting p square minus q square, आपको याद होगा आपने पिछली बार ऐसी स्क्वायर रूट को ऐसे सॉल्व किया, प्लस 2pqi is equal to minus 48 minus 14i। Now on comparing, we are getting p square minus q square is equal to minus 48 and 2pq is equal to minus 14. Equation 2, 1 already we have mentioned. Equation 3, now we will be finding what? याद आया आप लोगों को, अभी आपने जो सॉल्व किया, it is p square plus q square the whole square, which is minus 48 the square, or first of all let us write the formula. This is p square minus q square the whole square plus 2pq the whole square। आपने स्क्वायर रूट निकालते समय यही फॉर्मूला यूज़ किया है, इस लाइन को आपको याद रखना है। The next step is we are writing minus 48 the whole square plus 14 minus 14 the whole square. Okay, so minus 14 the whole square, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप देखिएगा आपको 2500 मिल रहा है क्या, which is the square of 50। चेक इट आउट, कर लीजिए वैल्यू निकाल के, सॉल्व किया तो अब अपने मिले, आपको वैल्यू मिली है p square plus q square is equal to 50. This is equation 4. From 4 plus 2, what shall you get? You will be getting p square plus q square is equal to 50, and p square minus q square is equal to, what is given to you? Minus 48. We are adding them and getting 2p square is equal to 2, and p square is 1, so that p is plus minus 1. यहाँ ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमने बस पॉजिटिव 50 लिया है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स। नाउ पी वी हैव गॉट फ्रॉम इक्वेशन 4, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू ऑल्सो। क्या मिलेगी जरा देखिए, इक्वेशन 4 कौन सी है आपकी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इज योर इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे आपने पी की वैल्यू 1 पुट करी तो क्यू स्क्वायर इज 49, and the value of q in that manner you are getting as q is equal to plus minus 7. Okay, so what is the value of p plus iq? अब यहाँ आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको पॉइंट बताया था while solving the square root. What is p plus iq? बेटा ध्यान दीजिए,
आपको मैंने बताया हुआ है, प्लस माइनस साइन तो लिखेंगे, वैल्यू ऑफ p भी हम लिखेंगे, साथ में वैल्यू ऑफ q के साथ आपको i लिखना है, विच इज इट, क्योंकि q टर्म है आपके पास में, बट द साइन विल बी वॉट, यहाँ पे साइन के लिए आपको इक्वेशन 3 फिर से देख लीजिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2pq? द वैल्यू ऑफ 2pq इज -14, नेगेटिव वैल्यू आ रही है. दैट मीन्स both the terms, the product of two terms which is negative, that means the terms are or of opposite sign. तो we will be writing 1 minus 7i here. तो ये एक चीज़ आपको पूरी सॉल्व करनी है जो आपने स्क्वायर रूट में यूज़ किया, सब टर्म्स आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं. The next is we will be putting the values in equation 1 so that we can get value of x. x is equal to क्या वैल्यू थी आपकी बताइए ज़रा, आपने ऑलरेडी लिखी हुई थी ना, दिस इज 5 माइनस आई प्लस माइनस, अब आपके पास रूट की जो वैल्यू थी उसकी जगह हम सीधे आंसर लिख देंगे, वी विल बी गेटिंग 1 माइनस 7i अपॉन 2. अब अभी ये सॉल्व नहीं हो गया हमारा, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप सॉल्व करते थे, एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन देन टेकिंग नेगेटिव साइन यू यूज टू गेट द आंसर. सो इन द सिमिलर मैनर वी विल बी सॉल्विंग इट बाय यूजिंग, we will be writing it as 5 minus I plus 1 minus 7i upon 2, and the two values, the second value is 5 minus I minus 1 minus 7i upon 2. Simplify it, you will get your answer. As 5 plus 1 real parts we have added, 5 plus 1 by 2 is 3, and this is minus 8 by 2 is minus 4i, and the next one is 5 minus 1 is 4 by 2 is 2, and देखिए ज़रा यहाँ पे when you will open the bracket you will get plus 7i, and in that manner 6i plus 6i by 2 is 3i. So this is the solution of this quadratic equation. Now see the next question. Your question is 2 plus I into x square minus 5 minus I x plus 2 into 1 minus I equal to 0. Again we will be using the formula method to solve this equation. Let us go for ABC. A is equal to 2 plus I, B is again देखिए minus 5 minus I, and C is equal to, let's 2 be out, bracket open मत करिए, using formula method we will be getting the value of x as minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही हमने फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व किया था, तो डिफरेंस बताते हैं आपको. जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो उसके लिए हमको पहले ये इक्वेशन हमारा मेथड है, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, इसको हम लेके चलते हैं, और एज वी हैव सॉल्व्ड अर्लियर वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो वैसे ही हमने वैल्यू निकाली बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसको पूरा अगर आप लिखते जाएंगे यहाँ पे तो आपको सारे टर्म्स बार बार लिखने पड़ेंगे. इंस्टेड ऑफ इट वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज वॉट, देखिए ज़रा, अभी भी वही चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं जो आपने लास्ट क्वेश्चन में करी है. नाउ सी, वी आर हैविंग a as 2 plus I and c as 2 into 1 minus I. Let's open the bracket properly with extra care. ध्यान से करिएगा इस चीज़ को, wrong नहीं होना चाहिए. This is 5 square plus I square minus 2 into 5 into I minus, अब देखो 4 2s 8 होता है, and we will be solving this bracket. यहाँ सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा हमें बताइए ज़रा. दिस इज 2 minus 2i plus I minus I square. This is 5 square minus 1 minus 10i minus 8 रहने दीजिए ऐसे ही, 2 minus 2i plus I minus minus plus 1. So we are getting 25 minus 1 as 24 minus 10i
-16, or let us solve it first. We are getting 8 into 3 minus I. जब सॉल्व किया तो क्या मिला देखिए ज़रा आपको. It is 24 minus 10I minus 24 plus 8I, and in all we are getting minus 2I here only. The value of b square minus 4ac is minus 2I. It is not containing the real part, purely imaginary number. ये तो इस क्वेश्चन की एक स्पेसिफिकेशन थी. आगे हमें उसी प्रोसीजर से सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए. अब हमें यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, वी विल बी गेटिंग रूट, तो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इट. सो वी विल अगेन बी टेकिंग p plus iq as the square root of this b square minus 4ac. So this is root over minus 2I. बेटा अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? दिस इज रूट ओवर 0 minus 2I है ना. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल बी गेटिंग p square minus q square plus 2p is equal to 0 minus 2I. On comparing, we will be getting p square minus q square is equal to 0. इक्वेशन अभी तक हमारी बना गई है, तो 2 and 2pq is equal to minus 2. This is equation 3. उसी तरह से हमें p square plus q square the whole square is equal to p square minus q square the whole square plus 2pq the whole square यूज़ करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या मिलेगा हमें देखिए ज़रा. अब ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया एंड प्लस 2pq है, तो माइनस 2 स्क्वायर इज 4. So when I'll take the square root of it, I am getting p square plus q square is equal to 2, equation 4. From same procedure, 4 plus 2, I am getting the answer as p square, 2p square is equal to 2. एंड p की वैल्यू कितनी आ गई इस तरह से आपके पास प्लस माइनस 1. ठीक है. सो ज़ीरो देख के कन्फ्यूज़ मत होइए, बिल्कुल ज़ीरो लगाइए. जो टर्म नहीं है उसमें ज़ीरो लिख दीजिए. इफ़ यू आर नॉट हैविंग रियल पार्ट यू विल बी राइटिंग ज़ीरो फॉर इट. इफ़ यू आर नॉट हैविंग इमेजनरी यू विल बी राइटिंग 0I. ठीक है. एंड फ्रॉम 4 वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ q ऑल्सो एज प्लस माइनस 1. मिल रहा है क्या? p की जगह पे आपने 1 पुट किया, यू आर गेटिंग q ऑल्सो एज प्लस माइनस 1. सो आपका स्क्वायर रूट जो p प्लस आई क्यू था, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2I और b स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac विच वॉज माइनस 2I यू हैव गॉट एज क्या होगा? प्लस माइनस. अब आपको ध्यान देना है फिर से साइन का. तो सी दिस इज हैविंग नेगेटिव साइन इन इट, तो यू विल बी राइटिंग ऑपोजिट साइन 1 माइनस I. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल रूट. लेट्स पुट द वैल्यू. अभी एक और स्टेप आपका इंतज़ार कर रही है. डायरेक्टली यू विल नॉट गेट द आंसर. लेट्स पुट द वैल्यू हियर. On putting the value, we are getting x is equal to minus 5 minus I, minus minus has become plus, plus minus, the value is 1 minus I upon 2a. इस बार बस a 1 नहीं है आपके पास, याद रखिएगा. You are having a is equal to 2 plus I, तो 2 into 2 plus I you have to write. अब आपने पॉजिटिव साइन लिया, यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू, और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो भी आपके पास कुछ वैल्यू आएगी. ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन वी आर गेटिंग 5 माइनस I प्लस 1 माइनस I अपॉन 2 इंटू 2 प्लस I. सॉल्व किया, क्या मिला? 6 माइनस 2I एंड 2 इंटू 2 प्लस I. पहले से ही ब्रैकेट मत ओपन करिए जब तक आपका सॉल्व ना हो जाए टर्म.
तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन निकल जा रहा है. आई एम गेटिंग 3 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई. नाउ दिस इज नॉट द आंसर चिल्ड्रन, रिमाइंड दिस थिंग. अगर डिनोमिनेटर में आई है तो हमें उसको रैशनलाइज करना होता है. तो हियर वी विल बी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस आई. आंसर कितना मिल जाएगा? डिनोमिनेटर इज 5 एंड न्यूमरेटर सॉल्व कर लीजिए. देखिए कितना मिलता है. 3 2 ज़ा 6 एंड माइनस 1 इज 5. कैसे आया ज़रा देखिए. 3 इंटू 2 6 माइनस 3i माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर. इस तरह से आप यूज़ कर लीजिए, गलतियाँ नहीं होंगी. अगर आपको लगता है कि स्टेप्स कम है, यू आर गेटिंग दिस एज आई स्क्वायर एज -1. तो 5 माइनस 5i अपॉन 5 विल गिव यू द आंसर एज 1 माइनस आई. यहाँ पे क्या किया आपने? 5 कॉमन निकालना है, ऐसे कट नहीं करना. अभी भी बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है. दिस इज 5 1 minus I upon 5. The answer is 1 minus 5. And for the second one also we have to do the same thing. X is equal to 5 minus I minus 1 plus I. देखिएगा ब्रैकेट साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन की तरफ स्पेशली ध्यान दीजिए. अपॉन अगेन 2 इंटू 2 प्लस आई. ऑन सॉल्विंग आई एम गेटिंग 4 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस आई. थोड़ा काम कम हो जाएगा हमारा, बट फिर भी हमें रेशनलाइज करना ही है. I'll be getting 2 into 2 upon 2 plus I and into 2 minus I upon 2 minus I, which will give us 2 into 2 minus I upon 5. So when we'll write it in standard form, what shall we get? We will get the value as 4 by 5 minus 2 by 5i. This is our second answer. So these two are the solutions of the quadratic equation. Okay, children? So you have learned all the properties and the algebra of complex number till yet. In next session, we will learn some higher order questions. Okay? So for today, it's over. Goodbye.